एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੁਲੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੋਦਲ ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੇਰਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ 10ਵੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ FA DAV ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਸੰਨ 1952 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੁਲੀਆਂ ਆ ਵਸੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਚੱਕ ਕੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੇਖੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ना हज भजे ना पीर
केतन है तो केतन है दिल में प्राणी नाम मेरा जपी दिन रात केतन है तो केतन है दिल में प्राणी जिन ओट में आते हैं जिन ओट में आते हैं फुटे गलियों पानी हर का है लगावे मुर्ग अज्ञाना टूटे लाल लग गए नहीं मन पछाना आज हूँ कच बिगड़ियों नाई आज हूँ कच बिगड़ियों नाई जो प्रभु गुण गावे कोहना कितने बदलते दिन पे पद पावे दिन पाने का नानक जो परोगा नाम तेरा जपी दिन नाम तेरा जपी दिन रे रगवाई सुन के रगवाई सोई के दिवस कोयो रगवाई सोई के दिवस कोयो हीरे जैसा जन्म है कोटि बदलेगा नाम तेरा जपी दिन नाम तेरा जपी दिन कबीर अल्लाह की जन्मत की कबीर अल्लाह की जन्मत की
के जाएंगे लम्बा पिया कबीर बैठा बोलो राम सिख समझाई नाम तेरा जपी दिन रात नाम तेरा जपी दिन रात नाम तेरा निरंकार है ना लइए मृत न गाइए जियो पिट सब सदा देखा जे आंख दबाए नाम तेरा जपी दिन रात नाम तेरा जपी दिन रात जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन रखना सदा सतना अलग परतन को पूजन होइए जब हर को बदल करना नाम तेरा जब भी तेरा नाम तेरा जब भी तेरा नाम तेरा जब भी तेरा नाम तेरा कृष्ण गुलारी बंधन बांधे हो इसके बल गाई पाप पुण्य की साथ बजाने पूरा फिरे लगाने बोलो बोलो सतनाम करतार उन भोर न आहलवार जाके सुननी की कलक है नीति करे सुल्तान जितनी जान सो जानिया जग के पूरे परिवार गाँव परिवार के सब आइए छोटो तुनी बजीता पन्नत नानक दास दासा जग हारे जिंदगी का नाम तेरा जब भी दिन रात जब भी दिन रात नाम तेरा जब भी दिन रात कब तक रुकना है नाम तेरा जब भी दिन रात नाम तेरा जिन मुनाशिकों किया सोई करना सार जिन उपाय के सोई करना सार गट गटवान कितना का सच्चा परवरदिगार कुदरत की न जाने बड़ा बेपरवाह नर बंदे कल तक जपना कल तक है नर बंदे दिल बंद की इज्जत घट में सा हर बंदे तू बंद की जिज्जत गत में जा तेरी बने खुदाए तू पसंदगी तेरे बने खुदा तू पसंदगी एक बने देखे
जेहा चीरी लिखया तेरा हुक्म कमाए, कले आवे नानका सदै उठी जाए। मां वाकन दे अनुसार गुरु घर दे प्रीतवान सरदार साहब सरदार वरिंदर सिंह जी सतगुरु जी, इस परिवार को सतगुरु जी सदा वास्ते संजीवी विछोड़ा दे जैन सतगुरु जी, इस लोक को सड़दों को गवन कर जैन सतगुरु जी। परसों रोज उन्होंने ग्रह बैठे पवित्र बाणी के श्री खंड पाठ साहब प्रारंभ कराया सतगुरु जी। निर्विघ्न दशा संपूर्ण हो गया सतगुरु जी खुले पंडाल के आप जी ने रागी सिंह ने आप जी की बाणी के सतगुरु जी कीर्तन किए सतगुरु जी। किया है कीर्तन का भाव अर्थ, किया है पाठ का भाव अर्थ, विछड़ चुके आत्म रूह बख्शिश करना सतगुरु जी। आत्म रूह अपने चरणों च निवास बख्शिश करना, पिछे परिवार में भाना मनन का फल बख्शिश करना सतगुरु जी। आवागमन के चक्कर तो मुक्त करना सतगुरु जी। आप जी के दाता पवित्र कड़ाह प्रसादी देख से आके हाजर है, देख दर परवान होवे परवाने होया प्रसाद साध संगत वरताउं दी आगे होए संगतां दे वास्ते गुरु के लंगर तैयार हैं। खावे खर्चे रल मिल भाई, टोट न आवे वध तो जाए, गुरु के लंगर दर परवान परवाने हुए लंगर। संगतां दे विच अटुट वर्तन सतगुरु जी। संगतां ने अंतम अरदास विच हाजरियां भरियां सतगुरु जी। चलिया होया कदम कदम दर लेखे चुड़ाउणा, तिल फुल मिटावा दर परवान करनिया सतगुरु जी। पावन हुक्मनामे बख्शिश करके आइया हुई सिख संगतां नूं नजरे नजर निहाल करो। से प्यारे मेल जिन्हां दे मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। टोडी महला पंजवा। हाड़ बिस्वे सदा सवारी, ताको तो कहाँ गया है, जाको ओट तुहारी। हाड़ बिस्वे सदा सवारी, ताको तो कहाँ गया है, जाको ओट तुहारी। बिन शरण जो जीवन मलमा, सर्व जैसे अन जाई। नव खंडन को राज कमावे, अंत चले दोहारी। गुण नाम हम तिन्हीं गाए, जाको कृपा धारी। सो सुधिया धन सजनमा, नानक चित बलिहारी। गुण नाम गुण तिन्हीं गाए, जाको कृपा धारी। सो सुधिया धन सजनमा, नानक चित बलिहारी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस तो पहला के श्रद्धांजलि समारोह दो तीन मेरे को बुला रहे हैं, उन्होंने बुलावा। मैं चाहना कि पहला रस्म पकड़ी कर ली जाए। मैं बेनती करांगा बेटे ने सरदार वरिंदर सिंह जी के बेटे श्री शेर बहादुर सिंह जी कि वो गुरु महाराज के सामने आके बैठे।
गुरबाणी का कथन है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जो इंसान इस दुनिया में पैदा होया एक न एक दिन उसने जाना। पर नाल गुरु महाराज ने अगलियां दो पंक्तियां विच भी दस दिता कि साडा मूर्त की है शरीर जामे दा। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारिया, अपन हथी अपना आपे ही काज सवार। आसा भी बात बाबा नानक जी कहते हैं। पर असी गुरबाणी के विच पढ़दे रह शाम को जो पढ़ते हैं या सुनते हैं हरमंदर साहब आदि अपने पिंड जो ग्रंथी साहब सवेरे शाम को पढ़ते हैं, असीं ये भी सुनते हैं भई प्राप्त मानुख ने होइया गोबिंद मिलन की तेरी करिया। पर असीं ये सारे जिहड़े ना पढ़ के चले जाते हैं, वो समझने की कोशिश नहीं करते। गुरु महाराज कहते हैं भई प्राप्त मानुख ने होइया गोबिंद मिलन की तेरी करिया। परमात्मा नूं मिलन की वारी है, क्योंकि असीं परमात्मा तो विछड़े हैं, उसकी अंश वंश है। बाबा कबीर जी कहते कहो कबीर हम राम की अंश, उस परमात्मा की अंश है। तो जे वो अंश है तो वो कोल जाना, वो चरणों से सानू योग जी सारी समा जाएंगे तो जीवन सफल होगा। वो दो तरीके हो सकती है, एक परमात्मा की भजन बंदगी करके ਉਹਦਾ जस कीर्तन करके, क्योंकि जीवन दे विच जस कीर्तन करना भजन बंदगी करना अपनी आत्मा नूं चुक के परमात्मा की जोत विच रलाउण वाली गल है। सूरज किरण मिलाए जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत वाली संपूर्ण सिंगार। असीं कहंदे ना कोई मर जांदा ते वो पूरा हो गया, पूरा ਉਹਦਾ ਮੰਨਿਆ जाना। गुरु महाराज कहते जिन्हें अपनी जोत नूं चुक के सिमरन करके परमात्मा की जोत विच अपनी जोत लाए। दूजे पासे वो शख्सियत वो भी जिहड़ा है अपने जीवन को ठीक कर गया, वो गुरु महाराज का जिहड़ा आशा है उन्हें पूरा कर गया। गुर सेवा ते भगत कमाई तब एह मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव सो देही पजहर कीसी। परमात्मा की भजन बंदगी करने दी ते जिहड़े कुछ लोग ऐसे होंगे जिहड़े समाज में चंगे कर्म करके जाते हैं, दुनिया उन्हां नूं याद करती है। वरिंदर भाजी के बारे में ये कहूँगा कि सारा ही परिवार, इन्हों के बेटे, इन्हों के ब्रदर, ये सारे ही समाज के नाल जुड़े हुए ये लोग ने। और इन्होंने समाज की भलाई वास्ते समाज के विच जिहड़ी लोक सेवा करके अपना नाम रखा। इन्हों के बेटे सरदार तरलोचन सिंह, इंद्रजीत सिंह, तेज बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह, ये सब अमेरिका में ने आ नहीं सके। सरदार शमशेर बहादुर सिंह ये साडे कोल इत्थे बैठे ने, और इन्हां दी एक बेटी रणवीर कौर और उन्होंने पति सरदार परमजीत सिंह, ये सब अमेरिका में ने। उन्होंने वालों भी असीं सारिआं ने रल के अरदास करनी, क्योंकि उन्होंने पिता अज इस दुनिया में नहीं रहे। गुरबाणी का कथन है, राणा राव न तुम रहे रंग न तुम फकीर बारी आपको अपनी कोई न बंदे, किसी ने तो स्थिर नहीं रहा। और जिहड़ा भाई साहब ने कीर्तन किया ना, भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी, ये भाई मरदाना की अंश वंश विचों ने, बोदलां तो ने, भाजी की पिंड कोई ने, भाजी भी पिंड बोदलां तो सी। और इन्होंने ये फुलबाग सिंह दिलबाग सिंह ब्रदर होंदे सी। इन्होंने जिहड़ा कीर्तन किया ना, वो भी इन्ना रस भिन्ना सी कि सानू भाजी की याद तो आ रही सी, क्योंकि शब्द ही इदां दे सी, पर नाल दे नाल उस परमात्मा का वाहिगुरू का भाना बनने का भी जिहड़ा ना कुछ संदेश मिलता सा। इस करके जे बाणी पढ़दे आ सुनदे आ कि साडे मन में विचार चलते हैं ना, तो इसका मतलब असीं बाणी सुनी नहीं। जो विचार चलने बंद हो गए तो बाणी ਜਿਹੜੀ है वो तुहानूं आत्मिक आनंद देगी। महाराज सिंह सारा जाना रियलिटी है, किस द रियलिटी ऑफ लाइफ। बाबा फरीद ने किसी ने पूछा कि बाबा जी तुसी मौत के बारे की कहना चाहते हो? बाबा जी कहते वेग फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, चार दिना दा दुनिया मेला फिर मिट्टी दी बनना ढेरी, वेग फरीदा मिट्टी खुली। मिट्टी नाल ना धोखा कर तू, किस काम लिए मिट्टी है? मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, जात पात
की गल ना कर तू, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी, वेख फरीदा मिट्टी की। ते दूजे पासे बुल्ले शाह जी ने किसी ने पूछा कि मौत के बारे में तुसीं की कहना चाहते हो? बुल्ले शाह जी कहते, बुल्ले शाह ते सब पुराने, किसे ना इत्थे रहना, आपो अपनी बात मुका के सब नूं मुड़ना पैना। बुल्ले शाह रंग फिके होए तेरे बाजों सारे, तू करके जित गए सा, मैं करके हारे। वाहिगुरू, मैं जद जद तेरा नाम लिया, मैं भव सागर चों जित के गया, ते जदों मैं पाल लई ते मैं हमेशा एक हर की। अज वरिंदर जी भाजी, इन्हां दे बेटे, उन्हां दा पिता चला गया, साडी भैन धी साडी रणबीर कौर, उहदा पिता चला गया। पर पिता के बारे असीं कई बार रिलेशन जिहड़े ना उन्हां दे बारे जदों गल करते हैं, पिता का वो रिलेशन है, माँ तो रो के दस दूगी कि मैनूं दुख है, माँ तुहाडा मत्था चुम के तुहानूं कह दूगी, दस दूगी कि मैं तैनूं बिटिया प्यार करदा हां। पिता भावें गुस्सा कर रहा होंदा, उहदे गुस्से विच भी प्यार है, और वो अपना सब कुछ एक प्यो आ जिहड़ा सब कुछ निछावर कर दिंदा। अब मैनूं इन्हां दे जगदीश बैठा पिछे, इन्हां दे कोल ही रहिंदा भाजी दे कोल, और इन्हें मैनूं हुणे दसी गल है कि वो बिल्कुल प्यो दा एक जिहड़ा उहदा करैक्टर है ना प्यो दा, उहदे बारे दस्सिया मैनूं। कहंदा कि 10-15 दिन पहला ना कुछ कर रहे थे कम, मैं क्या भाजी पापा जी की करते हो? कहते मैं अपनी सारी जायदाद जमीन जो भी है मैं अपने बच्चों के वारसां के नाम पे करता। ये कौन करता? प्यो अपना सब कुछ अपने बच्चों लिया। एक उर्दू का शायर है मुनव्वर नाम, उन्हें प्यो के बारे की किया, वो भी इसी तरह की गल है। कहता पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता उड़ते परिंदे का खुला आसमां है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, प्यो है तो जिंदगी घर खुशी है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सपने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने। दुनिया की हर शैली लैके जाएगा, भावें कर्जा चुक के लैके जाएगा। और मुनव्वर राणा का एक शेर है, जो किसी के पिता की मौत हो जाती है असीं कहने वो यतीम हो गया। अज ये बच्चे जिहड़े साडे अपने पिता की उस साए तो वांझे हो गए, तो वो शायर की कहता, यतीमी साथ लाती है जमाने भर की तकलीफें, यतीमी साथ लाती है जमाने भर की तकलीफें, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटा भी नहीं चुभता, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटा भी नहीं चुभता। मैं बहुता हूँ कुछ ना कमा क्योंकि समझ वाला हो गया, पर एक पाकिस्तानी शेर है कि 2-3 साडे रिलेशन, माँ का रिलेशन की, भरा का रिलेशन की, पुत्र का रिलेशन की। अज मेरा भी वकील सी, क्योंकि मेरे पिता सरदार जोगिंदर सिंह वकीलियां उन्होंने बहुत नेड़े से, सरदार चरण सिंह जी उन्होंने बेटे बैठे थे डॉक्टर साहब, उन्होंने बड़े संबंध से, सरदार सुविंदर सिंह जी पकौड़ पंप वाले, सरदार बलवंत सिंह जी रेडियो मकैनिक होंदे सी, सरदार सुरिंदर सिंह होरां दे जवाई भाई, उन्होंने नाल इन्हां दा बहुत उठण बैठण सी, और उन्होंने वर्गी इन्हां दी शख्सियत सी, और साडे पिता दे नाल मिल के इलैक्शन भी लड़ते रहे। मैं तो बड़े बचपन तो इन्होंने जानता, पर लाख इंसान सोचे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। अज ऊपर साडे विच भावें नहीं, उन्होंने ब्रदर सरदार सुरिंदर सिंह जी, सरदार अजीत सिंह जी, सरदार रविंदरजीत सिंह जी मेरे को बैठे हैं, और इन्हों के 3 ब्रदर हो, सरदार जसविंदर सिंह, सरदार गुरविंदर सिंह और सरदार राजविंदरजीत सिंह जी, ये पुलिस डिपार्टमेंट बहुत पहला इस परिवार को संजीवी विछोड़ा दे गए, क्योंकि भरावां का जो दुख होता ना वखरा ही होता। और वो बारे मैं एक गल कहना चाहना, पाकिस्तानी वो रिश्तियां की गुण दे रही, वो कहता मां मरे तां पेके मुकदे ने, मां मरे तां पेके मुकदे ने, प्यो मरे कर बेला शाला मरण ना वीर किसे दे, उजड़ जांदा जे मेला।
पुत्र जिन्हां दे टुर जांदे ने ते कद रोंदे हो थोड़ा सब रोगां तो रोग जे डाडा जिसदा नाम विछोड़ा भाई भाइयां दे दर्दी होंदे ते भाई भाइयां दियां बाहां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां बाप मरे सिर नंगा होवे वीर मरण तन खाली बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां ते मावां ठंडियां छावां। इस सभा दे विच गुरु महाराज की हजूरी में संगत में बैठे हो मैं तुहाडे सारिਆਂ नाल मिल के वाहिगुरू सच्चे पातशाह के चरणों च अरदास करदा कि उस पिछड़ी आत्मा साडे वीर सरदार वरिंदर सिंह जी को अपने चरणों च निवास बख्शी पिछे परिवार साथ संबंधी रिश्तेदारों इस पाने में मिलता बल बख्शी। सो मैं 2-3 बुलारे हैं उन्होंने बेनती करांगा कि वो आन ते वो भी अपने सज्जन असीस उस वाहिगुरू सच्चे पातशाह के चरणों च देन कि उन्होंने अपनी जोत दे विच जोत जिहड़ी है परमात्मा के चरणों में मिल जाए। सो मैं सब तो पहला बेनती करांगा सरदार सरबजोत सिंह जी साबी जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल के हल्का इंचार्ज ने मकीरियां दे उन्होंने बेनती करांगा कि वो ते श्रद्धा दे सुमन भेंट कर सरदार सरबजोत सिंह जी साहब। मनुखता का केंद्र निमाणिया के मान निताणिया के तान निवड़िया की ओर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी इस सोगमय समय जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु फतेह साझी करते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं सारे अपने बहुत ही सत्कारयोग सरदार वरिंदर सिंह जी सैकटरी साहब उन्होंने अंतिम अरदास में बैठे उन्होंने बारे मैं बहुत कुछ नहीं कहना क्योंकि तुसीं सारे उन्होंने शख्सियत उन्होंने सुभाव ਉਹਦੇ बारे सारे तुसीं बड़ी चंगी तरह उन्होंने परिवार बारे मेरे तो पहला साडे बहुत सत्कारयोग सरदार रणजोत सिंह जी तुहानूं दस के गए ने। असीं कई वारी कह दिंदे आ कि उस इंसान च बहुत निबरता उस इंसान च बहुत सादगी या उस इंसान च बहुत उसदी जबान च मिठास बहुत रस किसी न किसी च कोई ना कोई कमी होंदी आ। पर सरदार वरिंदर सिंह जी गुरां नूं मैनूं बहुत बार मिलण का मौका मिलिया या दर्शन करने का मौका मिलिया जो इन्हां सारिया गल्लां दा सुमेल जे कह लईए निमरता सादगी जबान च रस मिठास उन्हां सारिया गल्लां दा सुमेल जिहड़ा सीगा वो इन्हां दे विच देखण नूं नज़र आउंदा सीगा। उन्हां नूं एक शौक सी समाज दे विच असीं कदी विचरदे कोई ना कोई समाजिक खेत्र च काम करता कोई राजनीतिक खेत्र च काम करता कोई परिवार के काम कोई अपनी नौकरियां च काम करता पर इन्हां ने जिन्ना समा भी अपनी जिंदगी का हंडाया समाज के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों का जिथे परिवार के प्रति अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाई पर जिहड़ा साडे सब तो जरूरी एक अंग होंदा सिक्ख्या के खेत्र के इन्होंने अपनी बहुत बखूबी जिम्मेवारी दशमेश एजुकेशन ट्रस्ट को मैं समझदा वा जिहड़ा कि साडे इलाके का बहुत बड़ा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ਉਹਦਾ भी उन्होंने एक बहुत बड़ा घाटा इन्होंने जान का पिया क्योंकि सिक्ख्या के खेत्र जिन्होंने बहुत जिम्मेवारी नाल इस ट्रस्ट को अगे ले जाने वास्ते इनू खड़ा करने वास्ते इन्होंने विच बहुत अपनी भूमिका निभाई। मैं समझदा इहो जिहियां शख्सियतां जदों साडे तो विछड़ जांदियां चले जांदियां समाज नूं परिवार नूं अते बहुत ज़्यादा घाटा साडे सारे इलाके नूं इंसानां दे जान दा पैंदा जान हुण बणिया हर एक ने जाना चलो ये तां कुदरत दा एक पाना है
पर इन्हां गल्लां नूं असीं कई वारी सਹਿਜੇ कह दिंदे, पर उन्हां दा घाटा बाद जाके बहुत वड्डा महसूस होंदा, परिवारां नूं हुंदा, इलाके नूं हुंदा, जो इहो जिहियां शख्सियतां जिहड़ियां इलाके 'च काम करदियां सब चली जांदियां। बाकी जिहड़ा उन्हां दा जिंदगी का फलसफा गुरु राम नाल जुड़े रहे, ये बहुत जरूरी है साडी जिंदगी, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं किन्नी किसी को मिली या किन्नी नहीं मिली। साडे चों किसी को पता कदों आना कदों चले जाना, पर यह गल जरूर मन च रखनी चाहिए कि जिन्नी जिंदगी सानू मिली है वो गुरु महाराज के चरणों च लग के रहिए। अज हुणे साडे जरा कि जथे कीर्तन किया तो हुणे हुक्मनामा साहब भी आ रहा से, गुरु साहब कह रहे सी हर विसर सदा कुआरी ताकत धोखा कहाँ ब्याह के जाके ओढ़ तो हारी। जे आप विसरांगे तो उहते साडा कोई पता नहीं लगना कि असीं बिखर गए, तो जे उहदी ओढ़ रहेगी तो असीं जिंदगी चढ़दी कला च रहांगे। इस करके हमेशा गुरु महाराज के चरणों जुड़ के अपनी जिंदगी बतीत करिए, और गुरु महाराज चरणों च ही अखीर च मैं अरदास करांगा उस पिछड़ी हुई आत्मा नूं अपने चरणों च निवास बख्शना, पिछे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ परिवार ਨੂੰ रिश्तेदारां ਨੂੰ साख संबंधियां ਨੂੰ इस भाने ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ बल बख्शना। अखीर विच यही कहता हुआ संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेरे दिलो सज्जन सिसड़ियां जो होवे साहिब सो मेल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। जग सुखना बाजी बनी छिन में खेल खिलाए, संयोगी मिले एक से विजोगी उठी जाए, जो तिस भाना सो थिया आवर न करना जाए। सरदार वरिंदर सिंह जी किसी जमाने में सरदार सुरिंदर सिंह जी पेट्रोल पंप वाले ने उत्थे साडा एक ग्रुप हुंदा सी, सरदार सुरिंदर सिंह होरां दे। ते सुरिंदर सिंह नूं जदों असीं कभी शुगल में बैठ के ते छेड़ना तो कहना कि यार हावी कर देना, कहना कि सरदार सुरिंदर सिंह के 9 रतन है सारे यही होंगे सी सारे उत्थे। तो शुरू असी करना कि 9 रतन केड़े केड़े, फिर किसी ने कह देना शुगल नाल फिर 9 रतन तो गिणो केड़े केड़े। तो पहला असी रतन कहना कि सरदार वरिंदर सिंह नामगढ़ कुलिया। तेरी बहुत ही नेड़ता सी सारिਆਂ ਦੀ, जिन्हें भी असीं सज्जन रहे। ये बदकिस्मती कि सरदार सुरिंदर सिंह उस वेले अतवादी भेट चढ़ गया, डेथ हो गई। डेथ नहीं हुई, कतल ही होया, मार के गए फिर पेट्रोल पंप से। वो मगरों फिर वो साडा ग्रुप जिहड़ा सी हौली हौली खिलर खुलरी गया कि बहुत इकट्ठे हो नहीं सके, वो कर नहीं सके, आगे हो नहीं सके। सरदार वरिंदर सिंह बहुत इस तरह के घट बंदे होने हैं कि मैं देखा जरा पहले कितने जिंदगी जिन्हें काम कर लिया होगा तो कर लिया होगा। आ जी सैकटरी वाली सैकटरीशिप की गल है, बाद तो फिर वाहगुरू की कृपा ही रही है उन्होंने किया कख नहीं तो मौजा सारे कुछ नहीं बिल्कुल वेले। ये बेटे जब जाने चले गए, पहला बड़ा गया फिर छोटे भी चले गए, तो सारे चले गए। तो वाहगुरू ने ऐसी कृपा की कि फिर कुछ करने की जरूरत थी, ऐसी रब की रहमत हुई, बहुत कुछ हो गया। जिथे खड़े हैं ये कोठी शुरू की तो परला पासा मकान इत्थे मैं क्या भी अपने वरिंदर सिंह इत्थे कितनियां सवारियां रहनियां इस मकान से। कहता की मतलब तेरा मैं क्या भी तुसीं कितने जने हो इत्थे, अजकल बाकी न्याणे सारे तो अमरीका तो गए तो तुसीं इत्थे गए। कहता 2 ही असीं। मैं तो तेरी भरजाई, मैं क्या ठीक। तो फिर मैं क्या आ मकान कोई बहुता छोटा लगता सीगा। कहता नहीं एवं गल ही है, न्याणिਆਂ की गल सी वो कोई कहते हैं नहीं पापा होर बना दो, इस करके बनाया रहे इत्थे एक रात भी नहीं रहिंदा, उत्थे ही रहा, उत्थे ही डेथ हुई उस मकान की डेथ। और कोई जिस बंदे ने जिंदगी किसी नाल माड़ा ना किया हो, दिलों माड़ा ना किया हो, उदा हो जाए अचानक तो वो वाहगुरू भी माफ कर देंगे।
पर जिहड़ा दिलों मिथ के किया होए उहदे लई गुरु माफ नहीं करते, तो उन्हें मिथ के किसी का माड़ा नहीं किया। इस जिंदगी में यही एक गल थी कि मैं समझना कि 90 साल की उसकी उम्र हो गई सी और बिल्कुल बीमार नहीं हुआ। 2 दिन पहला भी बीमार नहीं हुआ, जिस दिन डेथ हुई है उस दिन भी बीमार नहीं होया। आराम नाल रोटी खा के सारा कुछ टेलीविजन देख के सुता। सवेरे जी रूटीन में आप उठ के चाह मना होंदा सी, वो मैडम की वह ना है वो नहीं, उन्होंने मैडम उठ के देखा उठे नहीं, अगे तो उठते होंगे से उठाया। तो फिर भाई साहब जीत सिंह होर ने इधर जाकर सद्या, सारे आ गए, देखा दिखाया तो गल है कुरान पढ़ के उड़ गए थे। तो मतलब यानी इस तरह की मौत वास्ते बहुत बहुत यानी भगती करते हैं साधु संत महात्मा, इस करके करते हैं भी अखीरला टाइम जो साडा सुखाला होवे, किते रगड़ रगड़ के मंजे ते पै पै के सारे टब्बर को वक्त पै जाए, कोई डॉक्टर दे कर करके इहो जी मौत नालों ये चंगी होती है। तो बहुत क्योंकि मेरे लागे मेरा जीन खड़ा हो गया, मैं समझना भी इंडिकेशन अभी मुका लिया शायद इसे करके। सो जेडे वरिंदर के पुराने उस ग्रुप के बंदे जोड़े है उन्होंने मेरा ख्याल है मैं ही हाँ, बाकी तो साढ़े जोड़े सारे बंदे से खिलर खुलर गए थे। तो बहुत जो असी कितने इकट्ठे होना बड़ा ही शुगल हो, बहुत शुगल होना, किसी को स्पेयर नहीं करना, उम्र छोटी वड्डी कोई गल इस तरह की उत्थे बैठ के जो हो जाना। सो फिर वरिंदर नाल मिलते तो रहे, लेकिन जो साडा अड्डा पुटिया गया ना वो मगरों घट गया, कदे कदाए इधर आने, इन्हें भी शहर नहीं जाना। लेकिन फिर एक गल वधिया की इन्हें कि ये संस्था नाल जी संस्था सी अपने अपने दशमेश गर्ल कॉलेज जड़ा सी यदा सैकटरी बन गया, उन्होंने भी ये लियाकत का फायदा उठाया। मैनेजिंग कमेटी ने वधिया उत्थे रखिया भी, नवाजिया भी, काम भी बड़ा करना है हिसाब किताब में एक्सपर्ट्स क्योंकि सैकटरी रहा सी। पर वैसे भी बाई बर्थ भी कई गल किसी न किसी कोई बख्शिश होती है वाहगुरू वालों भी, तो इन्होंने बख्शिश हिसाब किताब बड़ा अपने एक्यूरेट सी और बहुत वधिया सेवा भी की। हूँ मेरा कहना शायद कुछ थोड़ा जहा टाइम तो जाना आना कुछ घट गया से, कुछ उम्र का तकाजा हो जाता है, कुछ मसरूफियात हो जाती है। पर एक गल होर मैं भी महसूस करदा कि ज्यों ज्यों उम्र हो जाती है तो दुनियादारी नालों थोड़ा थोड़ा बंदे का लगाव कुछ घटी भी जाता। फिर जो इधर ही किसी की जुड़ जाए, इधरले पासे वाहगुरू के चरणों में ही किसी की लिफ्ट जुड़ जाए तो जुड़ जाए, बहुत चंगी गल होती है और जुड़ ही जाती है, जरूर जुड़ जाती है। इस उम्र के जोड़े असी है वो सारे महसूस करते ही है। हौली हौली दूसरे पासों जी वो अपने आप को बंदा मुक्त करी जाता भी घटी जाती है, जा जान दे कोई गल नहीं, वाहगुरू जो मंजूर है उदा ही हूँ छड़ी। सो बहुत नेक वधिया वधिया जिंदगी गुजारी। और मैं कदी कदी इनू कहना कि तू इतने आन के हम लीती भी कर लग पे आया तो तू गौरव कहना बोधला तो मैं हूँ आया कि उन्होंने ही आया कदे तो आया तू तो होना ही निका जो होना जो यही बोधला तो आ गए हूँ मैनू चेटना। तो मतलब बहुत नेड़ता वाली गल रही साडे नाल। ये बच्चे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ भी गए, जिन्होंने मैंने याद है कि विआह मोगे भी गए थे, बेटे दे मोगे भी गए थे। तो सारा कुछ ही अपनी हथी सारा कुछ मिल के करते रहे। तो बहुत तकलीफ हुई, दुख होया। एक साडा पुराना साथी साडे तो बिछड़ गया, पर किता कुछ नहीं जा सकता। लाख सोचे इंसान क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। जो उस वाहगुरू नूं भाउंदा उसके उल्ट कुछ किया नहीं जा सकता। बहुत चंगे पूरने पा के बहुत चंगी जिंदगी बसर करके पिछे अपन पैड़ा चंगिया छड़ के गया। तो मैं क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब भी मौजूद है, मिलती ना जाए जानकी अरदास, मैं तुहाडे सारिਆਂ नाल मिल के वाहगुरू के चरणों च अरदास करना, सच्चे पातशाह उस बिछड़ी हुई रूह नूं, साडे उस मित्र नूं, भरा नूं अपने चरणों च वाहगुरू अरदास चरणों च
निवास बख्शियो और पिछे उन्होंने सारे परिवार जिहड़े इत्थे ने उन्होंने भी जिहड़े अमरीका विच ने उन्होंने भी ये पाना मनन दा बल बख्शियो। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सुंदर कौर जी जिहड़े चेयरपर्सन ने दशमेश एजुकेशनल ट्रस्ट ने, उन्होंने बेनती करांगा कि वो आके शरधा सुमन भी भेंट करन ते अपनी इंस्टीट्यूट वालों भी शोक संदेश दें। मैडम सुखविंदर प्यारी साध संगत जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार बरिंदर सिंह जी जो कि दशमेश गर्ल्स कॉलेज के सैकटरी सन, उन्होंने क्योंकि इस चीज़ का तो मैनू भी बिल्कुल पता नहीं सी। मैं जगदीश नूं रोज़ पूछना, जगदीश मैं मिलने वास्ते उन्होंने जाना है, मैं कदों जावां? जगदीश ने मैनू कहना मैडम तुसी जदों मर्जी आ सकते हो, पर मैनू इन्ना नहीं सी पता भी मेरा उन्होंने नाल मिलाप नहीं होना। पर चलो वाहिगुरू नूं जो मंजूर है वही होना है। सो गुरबाणी का पवित्र फरमान है, मरण लिखाए मंडल में। वाहिगुरू सच्चे पातशाह दे हुक्म नाल ही आए हैं तो हुक्म नाल ही चले जाना है। सो सैकटरी साहब ने जो कॉलेज वास्ते घालना घाली है और जिन्नी उन्होंने मेहनत की है, 20 साल उन्होंने दशमेश गर्ल्स कॉलेज दे विच तन मन धन दे नाल सेवा की। और जड़ियां गरीब बच्चियां सन जड़ियां पढ़ाई नूं लायक सी पर खर्चा नहीं सी दे सकते, पर सैकटरी साहब ने उन्होंने मैनू भी यही गल कही, मैनू चेयरपर्सन का सेवा करने मौका मिलिया तो उन्होंने मैनू कहा, कहते मैडम ऐदा करिए मैनू कुछ बच्चियां दे देवो, मैं उन्होंने सेवा करांगा, मैं उन्होंने खर्चा पूरा चुकांगा। पर उन्होंने बच्चियां का 5 बच्चियां लिया, उन्होंने पूरा खर्चा इन्होंने दिता। सो इतों तक भी किया कि जे इन्हों के ब्याहां ते खर्चे की लोड़ हुई पेरेंट्स नूं किया ते मैं हाजिर है, मैनू जरूर दस दिओ। पर उन्होंने जो भी किया तन मन दे नाल कीता। जदों भी घर का काम कोई भी बीबी हुणी मैनू कहना बहुत जरूरी काम सीगा, अज भी सैकटरी साहब कॉलेज चले गए ते इन्हों कहना नहीं घर का काम कोई जरूरी नहीं, कॉलेज का काम जरूरी है। और जिस दिन भी जदों भी फंक्शन उत्थे होना तो मैनू कहना कि तुसी जरूर उत्थे कॉलेज आयो, आपां कोई सलाह मशवरा करांगे। तो मैं कहना मैं सैकटरी साहब 5-10 मिनट में तुहाडे कोल आ जाऊंगी। जदों जाना उत्थे सारा कुछ अरेंजमेंट जो किया होना सारा कर लेना, फाइनल भी हो जाना। पर सैकटरी साहब हुणी दिन जिन्नी दिन फंक्शन नहीं होना उन्होंने 3-4 बारी जरूर कॉलेज जाना, जाके सारा कुछ देख के जदों वापस कॉलेज तो आना तो साडे कोल आना तो मैं पूछना, मैं क्या भाई सैकटरी साहब तुसीं भाई कित्थों आए हैं? तो हसन लग पैना, कहते मैं कॉलेज तो। मैं कहना सारा कुछ काम होया? कहते नहीं। मैं क्या कोई कमी ना उत्थे रह जाए। उन्होंने अपना जी लाइफ सी उन्हें कॉलेज में समर्पित की सी, ਜਿਹੜੀਆਂ कि अज कॉलेज बुलंदियों से जा रहा है। उन्होंने बहुत मेहनत और जो उन्होंने योगदान पाया है बहुत ज़्यादा कोई पा नहीं सकता। इस तरह दियाँ शख्सियत बहुत घट है ਜਿਹੜੀਆਂ कि इन्नियां जिम्मेवारियां लैके काम करदियां हैं। सो उन्होंने जान का
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਭਾਗ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੁਛ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਆਂ 51,000 ਰੁਪਇਆ, ਔਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਜੀ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਆਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गोदा निकमान की साध संगत जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुम सारे पता ही है, ना साढ़े वड्डे भाई सरदार वरिंदर सिंह जी सारे विछोड़ा दे गए हैं। उन्होंने अंतिम अरदास शामिल होने अपने रिश्तेदार, सज्जन मित्र, सके संबंधियां दूरों नेड़ों जो भी आए उन्होंने कदम कदम साढ़े सिर मत्थे से सारे बेनती करदा कि सारे लंगर छक के रहना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की